Yes. So I think, is there anybody in the class who has any doubt with the oxidation reduction? अभी तो काफी इजी हो गया ना, वो तो आता ही होगा कि सर ये तो आता है, right? Just for the quick recap, let's say just let's quickly look at what is oxidation and what is reduction. I'm making Garima co-host. Just take care of the people who are kind of joining the meeting late, and just we can maybe let them. How do I make co-host? I don't think I can. So just click on her name, so you will get the option probably. The option is to make host, but if I make her host, I'll lose all my things to share and all of that. Well, I Anyway, think co-host is not available in the Zoom free version. The co-host option. Oh, okay. No problem. Okay, no problem. I'll see. So the oxidation reduction basics, I think we'll go like super fast. We know this is your addition of oxygen, and just opposite, this is your removal of oxygen. This will be your removal of hydrogen, and in a similar setup, this will be just opposite of that. This is your addition of hydrogen. And my personal favorite example for this is this H2 and O2 giving you an H2, and H2, if you break it using electricity, it breaks into H2 and O2. So I find it very useful because it actually handles all the cases. So if I talk about addition of oxygen, this is H2 plus O2, and this is giving you H2. And if you balance this, so 2H2 plus O2 becoming 2H2. Let's break this part. 2H2, if you put some electricity, this will become 2H2 plus O2. You use the same thing. If I use the same reaction, H2 is between 2H2 plus O2, and here H2 plus O2 giving you 2H2. So I'm using one reaction actually. One is the reverse process. One is the opposite of that. Now look here. If I see the hydrogen here, so here we have hydrogen, and here we have hydrogen, dihydrogen monoxide, or H2O. So from the hydrogen point of view, it is getting oxidized. But same reaction I'm using here. And here, if you see that from the O2 point of view, right, this becomes very interesting. If you see from O2 point of view, so from O2, this goes to become H2O. And what happens? Here, addition of hydrogen is happening. So what is this becoming? This is getting reduced, right? So in the same equation, 2H2 plus O2, if you look, one thing is getting oxidized and one thing is getting reduced, which has to be there because we have studied at the end of the day, fundamentally, it's all about electrons. If someone is losing electron, someone has to gain that electron until and unless we are writing half equations. अभी half equation लिखेगा अलग बात है कि चलो ठीक है, electron loss करके छोड़ दिया या electron gain करके छोड़ दिया, and we are not bothered about कि कहाँ गया या कहाँ से आया. But here in a balanced chemical equation, we are seeing that. Now, इधर देखो, H2O से हम कहाँ पे जा रहे हैं? अगर हम H2 पे गए तो क्या निकला? ऑक्सीजन. और अगर हम H2O से O2 पे गए तो क्या निकला? हाइड्रोजन. अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन. और अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. इतना चमकता है, बहुत बेसिक है, तो 9th में पढ़ा है तुम लोगों ने. Now, before I go and give another version of this, let's understand one more thing कि एक और फर्दर तरीके से हमने इसको एडवांस किया था, which was, मैंने बोला कि भाई एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर ऐसा हो रहा है तो वो होगा ऑक्सीडेशन. और इसका जस्ट उल्टा कर दो, मैं बोल रहा हूँ कि रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या होगा?
रिडक्शन। अगर याद करने में दिक्कत होती है तो यू कैन कोरिलेट लाइक दिस, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये तो याद रहेगा ना कि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ऑक्सीजन हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, राइट, hence electronegative, whereas metals they have a tendency to lose electrons, so they are electropositive। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव कर रहे थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपन ने रिमूव किया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट, दिस इज सॉर्टेड, है ना। In a similar way, if you look from the hydrogen point of view, although we know कि hydrogen थोड़ा सा disputed है because hydrogen is electropositive as well as electronegative। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ये चमकता है, राइट। हाइड्रोजन जो है H+ भी बना सकता है और H- भी बना सकता है। H- कब बनाता है वो, जब वो फर्स्ट ग्रुप मेटल के साथ उनका हाइड्राइड बनाता है, LiH बना रहा है, NaH बना रहा है, KH बना रहा है, फर्स्ट ग्रुप के मेटल के साथ जब भी वो बनाएगा। दिस इज योर 12th क्लास में डिटेल में जाएंगे, 11th में थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। इसी चैप्टर में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो इसमें मेंशन है कि हाइड्रोजन जो है +1 कब बनाता है, +1 कब बना रहा है हाइड्रोजन, सॉरी -1 कब बना रहा है हाइड्रोजन, जब वो फर्स्ट ग्रुप के मेटल के साथ जा रहा है, बिकॉज फर्स्ट ग्रुप का मेटल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और अभी इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर, इलेक्ट्रॉन जाएगा हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन H- बना के अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। यूजुअली अगर हाइड्रोजन किसी के साथ भी जाएगा तो सिंस बहुत ही कमजोर सा है बेचारा हाइड्रोजन, तो उसका इलेक्ट्रॉन सारे छीन लेते हैं, और उसका जब इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं तो वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाता है। तो वी कैन यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, बिकॉज वहां पे टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। जो मेटल हाइड्राइड का केस होता है ना, इट्स काइंड ऑफ स्पेशल केस, एज अ स्पेशल केस समझेंगे हम लोग, बिकॉज मेजॉरिटी केसेस में हाइड्रोजन H+ बनाएगा। इट्स अ वेरी नीश, वेरी छोटा सा केस जहाँ पे हाइड्रोजन H- बनाता है, दैट इज इन द ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 मेटल्स। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एंड इसका जस्ट उल्टा करते हैं यहाँ पे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ऑल्दो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बट जस्ट फॉर द सेफ्टी, ये जो यहाँ पे 4 पॉइंट है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो चीज कॉमन ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और इस वाले पोर्शन में क्या कॉमन है सब में, इन चारों पहले के पॉइंट में, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, जो 11th वाले मैंने आपको हाईलाइट करके दी थी, तो वहां पे यू विल फाइंड कि बहुत ही क्लियरली मेंशन किया उन्होंने कि जो मॉडर्न नोशन है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का, दैट इज नॉट इन सेंस ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज कंप्लीट लॉस या कंप्लीट गेन होता नहीं हर जगह। देयर आर सो मेनी केसेस जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो शिफ्ट हो रही है, राइट। तो हम बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दूर गई, राइट, तो काइंड ऑफ लॉस हुआ एक तरीके से, तो हम बोलेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पास आई या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, तो काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो हम बोलेंगे रिडक्शन। थोड़ा सा एक दो बार अपन इसको पढ़ेंगे तो चमक जाएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये तो अपन ने पढ़ा है ना, ऑयल रिग, ऑयल रिग, आई थिंक सारे बच्चों को याद होगा। ये एक तरीका याद करने का, दिस इज योर ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन। कॉमन क्या है दोनों में, ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है, समझ में आता ही है, राइट। तो आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये कि जो मॉडर्न नोशन है हमारा, जो लेटेस्ट नोशन है, जो लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कहती है कि भाई कभी भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंप्लीट सॉर्ट ऑफ जो कंप्लीट मूवमेंट तुमको दिख रही है, बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जहाँ पे कोई कंप्लीट मूवमेंट नहीं हो रही, जहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। और वहां पे भी हम इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की बात करेंगे कि भाई, या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी दूर चली गई, और वो कहाँ से निकल के आता है, एक कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 9th में हमने चर्चा की थी इसके बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
the ability of an element or the ability of an atom to attract a shared pair of electron in its bonded state. एक एटम है या एक एलिमेंट है, एटॉमिक फॉर्म में बात करते हैं, एक एटम है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, और कौन से स्टेट में? जब वो बॉन्डेड स्टेट में है, तभी तो शेयरिंग होगी ना, है ना? बट ये लिखना और ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उस एबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, या जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनको अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी, that is what is known as electronegativity. What is the most electronegative element? Fluorine. चमका। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? ऑक्सीजन। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। फॉस्फोरस, क्लोरीन ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, बट ये हमें याद रखना कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड पाउली स्केल पे उसका जो वैल्यू है दैट इज 4. इट्स अ 0 to 4 स्केल, वो धीरे धीरे आएगा, बट जस्ट ऐसे ही ध्यान में रखो इसको। तो डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस कि अच्छा ये ऑक्सीडेशन कैसे हुआ यहाँ पे लॉस के टर्म्स में, और ये आता है, मैंने यहाँ पे बोला ना कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बोला रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डू यू हैव दिस क्लैरिटी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे हुआ होगा? सपोज यहाँ पे मैंने बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, ये पता है कि मैं बताऊं? चलो, तुम्हारे चेहरे देख के लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए। तो लेट्स सी दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर, कि भाई मैं बोल रहा हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना? एंड दिस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाउ दिस इज कोरिलेटेड विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास मैग्नीशियम है और इसको मैंने जला दिया ऑक्सीजन में, क्योंकि मैं पागल हो गया, मुझे यही काम है, बस मैं एलिमेंट जला रहा हूँ बैठ के। तो क्या बनेगा? 2 MgO। याद करो, क्लास में लाके दिखाया था मैंने, कुछ बच्चों को दिखाया था, पनवेल और सीगुस वाले बैच में दिखाया था मैंने, वही दिखाया था। सो सॉरी, माय बैड। मैग्नीशियम खरीद लो आराम से बाहर से। खाली 10th में दिखाया था मैंने, 9th में रह गया था, सो सॉरी। तो एनीवेज, मैग्नीशियम को तुम जलाओगे ना, तो ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, और ये सॉलिड स्टेट में बनेगा। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वाइट डार्जलिंग फ्लेम बनती है, और कोशिश करना कि इसको अपनी सीधी आंखों से मत देखना, डैमेज करता है आंखों को, चश्मा वश्मा लगा के देखना है इसको, बट काफी डार्जलिंग सी फ्लेम आती है ना? अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो मैग्नीशियम है, दिस इज योर 2,8,2, राइट? और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, दिस इज 2,6। अभी इसकी तमन्ना है 2,8 बनने की, और इसकी भी यही तमन्ना है 2,8 बनने की। तो अब इसको ध्यान से देखो कि अगर ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना होगा, तो क्या कुछ ऐसा हुआ होगा कि मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, और अगर ऑक्सीजन इसके पास आके जुड़ रहा है, तो इकलौता एक ही रीजन हुआ होगा कि मैग्नीशियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दान दे दिए होंगे, ले भाई पकड़ दो। और जब इसने ऐसा किया होगा, तो दिस वुड हैव बिकम Mg+2, this would have become O2-, and now understand, both are stable, both are chemically stable. क्यों? बिकॉज इन दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये नोबल गैस का है, 2,8 2,8, राइट? दोनों स्टेबल हैं बिकॉज दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस का, दैट्स दे आर स्टेबल केमिकली। व्हाट डज दैट मीन? दे विल रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ change in the electronic configuration, but there's a reason why I'm saying they are stable chemically. मैंने बस ये नहीं बोला कि they are stable, मैंने एक और वर्ड ऐड कर दिया वहां पे, they are stable chemically. So ये 12th में तुमको पढ़ाएंगे, बट ऐसे नाम जानने में कोई बुराई नहीं है। एक प्रिंसिपल होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी। ये देखने में ऐसे फैंसी सा प्रिंसिपल लगता है कुछ नहीं है। ये बस ये कहता है कि भाई अगर किसी के पास चार्ज है ना, तो वो उसको मजा नहीं आएगा, वो चाहेगा कि अपने ऊपर जो है चार्ज हटा ले। बिकॉज सपोज करो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अभी आजू बाजू कोई पॉजिटिव चार्ज वाला है तो मेरे को रिपल्शन फील होगा, आजू बाजू कोई नेगेटिव चार्ज वाला है तो मेरे को अट्रैक्शन फील होगा, तो कहीं ना कहीं मैं अफेक्ट हो रहा हूँ। सो दैट इज वन वे टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि लाइक जो चार्ज है वो थोड़ी तबाही मचा रहा है। हमें क्या समझना है अपने लेवल पे, दैट एनी स्पीशीज वुड लाइक टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट? समझ पा रहे हो? तो अब देखो, सपोज करो कि यहाँ तो बड़ा सिंपल सा है कि तुम्हारे पास Mg+2 है और यहाँ पे O-2 है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आएगा ही। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये किसकी वजह से है? ड्यू टू आयंस।
और इसीलिए इसका नाम पड़ा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक मतलब आयन की वजह से, और बॉन्ड का तुमको बता रखा है, बॉन्ड का लिटरल ट्रांसलेशन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बॉन्ड का लिटरल मीनिंग है। बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चमका, इसका दूसरा भी नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये शायद मैं तुमको बताया था 9th में कि जो क्रिस क्रॉस हम करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज जो क्रिस क्रॉस हम कर रहे थे वो इसलिए करते हैं कि भाई नेट चार्ज, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, वो नेट चार्ज ऑलमोस्ट बराबर हो जाए, कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए, तो ना वो किसी को अट्रैक्ट करेगा ना वो किसी को रिपेल करेगा। क्लियर है? और ये बहुत ध्यान से बात याद रखना कि ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, जैसे NaCl बना या MgO बना, दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल। जेई ने सवाल पूछा था इस पे, बहुत ही फनी था, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे बच्चे गलत करके आ गए थे इसको। सर इसमें लैटिसेस NaCl, बनते हैं। yes, NaCl is not a molecule because there's a difference between molecular mass, है ना, and formula Unit unit mass. mass। तो फॉर्मूला यूनिट क्या है कि भाई किसी भी चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, कि ऐसे बिल्डर होता है ना, तो आपको एक सैंपल फ्लैट दिखाता है कि सर ये ऐसा फ्लैट है, ऐसा फ्लैट बना देंगे आप, है ना। तो वो आपको सैंपल दिखा रहा है। फ्लैट तो बहुत सारे हैं ना, तो एक काइंड ऑफ लैटिस में है। आपका फ्लैट कौन सा है, तो आपने एड्रेस बना लिया अपना वैसा। तो NaCl में क्या है कि Na के ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं 6 Cl है, Cl के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं 6 Na प्लस एंड Cl माइनस। अब उसको कैसे फॉर्मूले में लिखे, तो वी काइंड ऑफ कम अप विद फॉर्मूला कि ये रिप्रेजेंट करता है पूरी चीज को। तो क्या रेशियो उनका 1:1 का रेशियो है, तो चलो भाई NaCl बना लेते हैं। NaCl is not a molecule. What is a molecule? Molecule is something which can stand alone independently, जो खुद से अपने आप से स्टैंड अलोन कर पाए, स्टेबल हो पाए, वो तुम्हारा मॉलिक्यूल बनेगा। और यहाँ पे एक अच्छा सवाल बनाया जा सकता है तुम्हारे लेवल पे, कि जो नोबल गैस के एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल भी होते हैं। नोबल गैस के जो एटम है वो मॉलिक्यूल भी है। क्यों? बिकॉज नोबल गैस का एटम तो स्टेबल है ना अपने आप में, वो तो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिविजुअली, राइट? तो दैट इज अ मॉलिक्यूल इन इटसेल्फ। ये ध्यान रहेगा, ये क्लास 9 के एनसीईआरटी में दे रखा है, मतलब एक बार पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये समझ में Yes. आया कि भाई जो ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन, वो हम क्यों ऐसी बकवास कर रहे हैं। ये चमका ना? ठीक। अब देखो मुद्दे पे आते हैं। सो अभी हम बात करेंगे कि भाई जो मॉडर्न नोशन है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो क्या है, राइट? कि अ, तो उसके पहले, बिफोर वी गो इन डेप्थ कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर का फंडा क्या है, एक बार पहले ये समझते हैं कि भाई हाउ डू वी कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। 6 रूल्स हैं, एक बार आप वो पढ़ लेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। और ऐसे समझ लो कि अगर जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको उसको ऐसे देखो कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ना बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पे जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम बोलेंगे कि ये चीज हो रही है ऑक्सीडाइज। और अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, तो हम बोलेंगे ये चीज हो रही है रिड्यूस। मतलब क्या हुआ, अगर सपोज करो +1 से ये चला गया +2 पे, हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर ये सपोज करो -3 से चला गया -2 पे, तो भी हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज हुआ, बिकॉज डायरेक्शन किधर है, एक्स की तरफ। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, -3 छोटा कंपेयर टू -2, राइट? बट अगर सपोज करो ये चला जाता है तुम्हारा +3 से +2 तक, हम बोलेंगे रिड्यूस रिड्यूस हुआ है। या अगर सपोज करो ये -1 से -2 चला गया, तो भी हम बोलेंगे रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे हमें काफी हेल्प मिल जाती है। और ये कैसे बताएंगे, कभी कभी कुछ ऐसे केसेस आएंगे तुमको जहाँ पे तुमको मिलेगा कि यार एक साइड पे तो आ, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ और दूसरे साइड पे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो गया। जैसे सपोज करो एक साइड पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हुआ, दूसरी साइड पे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हो गया। अब क्या करें, राइट? तो उन केसेस में ये बहुत आसान कर देता है हमारे काम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना। यू जस्ट कैलकुलेट हाउ डू वी, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो शुड वी स्टार्ट, है ना? तो जो मैंने PDF भेजा था, यू कैन ओपन इफ यू वांट पेज नंबर 268। उसी पे जो 6 रूल है वो हम देखेंगे, और बहुत ही आसान है। पहला रूल क्या कहता है,
पहला रूल बड़ा सिंपल सा है कि अगर कोई भी चीज फ्री स्टेट में है या अनकम्बाइंड स्टेट में है ना, तो वहां पे जो उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं वो होता है जीरो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम अगर एलिमेंटल फॉर्म में है, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, या ओजोन के फॉर्म में है, या तुमको आयरन दे रखा है, या कॉपर दे रखा है, या नियॉन दे रखा है, या P4 दे रखा है, या एसिड दे रखा है, ये सारे क्या है? ये फ्री स्टेट है या ये अनकम्बाइंड स्टेट है। तो यहाँ पे कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर आपने लिखा है अनकम्बाइंड स्टेट, और ये तो देखो P4 की अगर आप बात करो, एसिड की बात करो, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? P4 का स्ट्रक्चर दो तीन टाइप से बनता है, एक बना के दिखा रहा हूँ। एक P4 तुम्हारा ऐसे बनता है, ऐसे, है ना, ये होता है तुम्हारा व्हाइट फास्फोरस। और एसिड तुम्हारा बनता है क्राउन शेप में, ये रैंगलर का लोगो बनाने का, एक और रैंगलर का लोगो बनाने का, जोड़ देने का इसको, है ना, ऐसे क्राउन शेप में। तो ऐसे याद रह जाएगा, मैंने ऐसे याद किया था। तो सल्फर, 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 सल्फर और सल्फर। तो ये अनकम्बाइंड का मतलब ये होता है कि किसी और के साथ कंबाइन नहीं हो रहा, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हो रहा है, अपने के साथ ही साथ में है, मतलब पड़ोसी पड़ोसी आपस में भाई बहन है ना। तो एसिड को लेके ऐसा कंफ्यूज नहीं होंगे, या P4 को लेके ऐसा कंफ्यूज हो सर यहाँ तो आपने बोला, या जैसे O3 है तुम्हारा, तो O3 क्या होगा? O डबल बॉन्ड, O कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। O2 क्या होगा? O डबल बॉन्ड हो। ये सारे को ऐसे नहीं बोला सर ये तो कंबाइंड फॉर्म में है, ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, अपनी फ्री स्टेट में है ये। चमका? अगर यहाँ पे OF2 होता है, कुछ और होता है, या कुछ दूसरा एलिमेंट होता है, तब बोलता हाँ ये कंबाइन होकर बैठा हुआ है। ऐसे सारे केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमको क्या लेना है? 0 0 0 0 0 0 0 और 0। ये चमका? कोई डाउट? जागृत था आपने? सर क्लियर हो गया। वेरी गुड। अच्छा, दूसरा का रूल ये है, ये मैं PDF दे दूंगा, परेशान नहीं होना। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी तुम्हारे पास आयन है ना, और एक ही एटम का आयन है वो, ठीक है, तो उस पे जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर कोई तुम्हारे पास आयन है ऑफ ओनली वन एटम, राइट, सो हम क्या बोलेंगे कि जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, या उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। मतलब Na प्लस उठा लो, Mg2 प्लस उठा लो, Al3 प्लस उठा लो, फिर नाइट्रोजन 3 माइनस उठा लो, O2 माइनस उठा लो, और F माइनस उठा लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 -3 -2 और -1, ये चमकता है, राइट। अच्छा, तुम्हें अगर ऐसा केस दे दे कि सर मेरे पास तो सर Mg प्लस है, या Al2 प्लस है सर, या तो मेरे पास N माइनस है, या O माइनस है सर, तो क्या होगा? कोई बात नहीं, Mg प्लस देखने में और लग रहा हो सर, हमने तो Mg2 प्लस देखा हमेशा, Mg प्लस भी तो हो सकता है ना। तो Mg प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? Mg प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। Al+3 का, सॉरी यहाँ पे 2 लिख देते हैं, Al+2 का क्या होगा? +2। N माइनस का क्या होगा? -1। O माइनस का क्या होगा? -1। जो भी चार्ज है वो लगा दो, अगर आयन है एक ही एटम का। ये चमकता है क्या? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो। अब कहीं कहीं पे थोड़ा सा धोखा होता है। कैसे? कि ये तीसरा रूल है, तो केस याद रखने हैं, स्पेशली होता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन ना दो तीन प्रकार के ऑक्साइड बनाता है अपने, है ना। और ऑक्साइड क्या होते हैं? तो तुम्हारा होता है नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक, एक होता है पर ऑक्साइड, ठीक है, एक होता है तुम्हारा सुपर ऑक्साइड। ये याद आ रहा है? पढ़ के आयो थोड़ा बहुत? एनीवन? याद आ रहा है ना? ठीक है, ऑक्साइड है तो नॉर्मल है, पर ऑक्साइड वाला और सुपर ऑक्साइड वाला, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ऑक्साइड में क्या होता है? -2। पर ऑक्साइड में क्या होता है? -1।
और सुपर ऑक्साइड में क्या होगा, कोई बताएगा? माइनस, माइनस। वेरी गुड। इसका एग्जांपल देख लो, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड पानी H2O, इसका H2O2 और इसका KO2। ये KO2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, एस ब्लॉक में फिर से घूम के आएगा। फर्स्ट ग्रुप उठा लो, उनका ऑक्साइड बना दो। फिर देखो टूट कैसे रहा होगा, एक्चुअली ये टूट कैसे रहा होगा, K+ अलग जा रहा होगा और O2-1 अलग जा रहा होगा। समझ पा रहे हो? अब ये O2-1 से ही हम कैलकुलेट करते हैं कि इस यहाँ पे O का x मान लो, तो कितने हैं, 2 है ना, तो 2 × x = -1, तो x = -½ ये मैंने क्या बकवास करी यहाँ पे, ये आखिरी रूल है आज का, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ना आपके लिए, ये कैसे कर रहे, आज ही क्लास का आखिरी रूल है, तो परेशान नहीं होना अभी, बट ये याद रखना है। परऑक्साइड में क्या होता है, परऑक्साइड में होता है बच्चे O लिंकेज, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां पे और हम डेप्थ में समझेंगे इसको, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है। आई टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास, मे बी एसिड शुरू करने के टाइम पे, बट यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे O लिंकेज होगा। फॉर द ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू इसका बड़ा इंटरेस्टिंग केस है H2O2 का। इसका स्ट्रक्चर ऐसे आ रहा है, OH और H, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे। तो इसको ना ऐसे बोलते हैं कि ऐसे अगर ऐसे बनाओ तो ये कुछ देखो ऐसा स्ट्रक्चर आता है इसका, तो इसको हम बोलते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। और इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ध्यान रखेंगे, है ना, ये क्लियर हो रहा है? जब मीटिंग खत्म होगी तो 5 मिनट रुकने का है, मैं नई लिंक दूंगा, है ना, वो 5 मिनट की बंदिशें हैं कि भाई तुम फ्री यूजर हो तो तुम्हें 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, तब तक पानी वानी पी कर जाना तुम लोग, ठीक। अगला रूल जो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे एक्चुअली, वो है हाइड्रोजन वाला। ये क्या कहता है कि भाई हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन को हम हमेशा लेंगे +1, एक्सेप्ट ऑफकोर्स केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो बहुत देर से नहीं है ना, एक्सेप्ट जब ये बनाता है अपना मेटल हाइड्राइड, चमका, एक्सेप्ट जब ये बनाएगा अपना मेटल हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल LiH हो गया, NaH हो गया, ग्रुप 2 उठा लो तो वहां पे CH2 बना लेगा ये। तो LiH में ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, समझ पा रहे हो? यहाँ पे +2 हो गया और ये H2 एज अ होल -2 पे जाता, तो एक एक H के पास -1 आया, चमका, ये क्लियर है? इसी में दूसरा केस हमको देखना है कि फ्लोरीन, ये -1 जाएगा ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है, फ्लोरीन हमेशा -1 जाएगा। फ्लोरीन को कौन रोकता है? बस फ्लोरीन खुद ही। अगर फ्लोरीन फ्लोरीन में बॉन्ड बना हुआ तो वहां कुछ नहीं होगा, बट अगर फ्लोरीन किसी और के साथ बॉन्ड बनाया तो फ्लोरीन -1 पे जाएगा। अब देखो ग्रुप 17 क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एक चीज ध्यान रखना, हम आगे पढ़ेंगे कि as we go down Force in of a group, attraction increases. electronegativity or the tendency to attract electrons towards itself decreases, because साइज बड़ा हो रहा है ना, तो डिस्टेंस बड़े होने से फोर्स कम होता चला जाता है। तो अब सपोज करो कि एक मैंने फ्लोरीन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया, क्लोरीन का ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना दिया और ब्रोमीन का आयोडीन के साथ बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे फ्लोरीन जाएगा -1, क्लोरीन जाएगा +1, यहाँ पे क्लोरीन चला जाएगा -1, ब्रोमीन चला जाएगा +1, और यहाँ पे ब्रोमीन चला जाएगा